Good morning to my dear students. So students, in previous lecture we have completed our play part. In play part we have studied about my daily routine, then diet and cleanliness. Then we have saw notes on this play part. Just I will revise all those notes one more time, so just go through that notes. So notes are as follows. Fill in the blanks. We need food to live and grow. Food gives us energy to work and play. Clean surrounding help us to lead a good and healthy life. Keeping classroom and school clean is a very good habit. We brush our teeth with the help of our toothpaste and brush. Complete the following word. Sleeping, SLEPPING. Soap, SOAP, soap. Vegetable, VEGETABLES. Fruits, FRUITS, fruits. Cleanliness, CLEANLINESS. Surrounding, SURROUNDING. Classroom, CLASSROOM, classroom. Match the following. Washing hands, HAND, hand. Brushing teeth, TWTH, teeth. Combing hair, HAIR, hair. Cleaning clothes, wearing clean clothes. Taking a bath, playing games. First B, second D, third F, fourth A, fifth C, sixth E. Then odd word out. Fish, milk, egg, meat. Odd word is milk. Breakfast, dinner, eating, lunch. Odd word is eating. Ball, soap, towel, toothpaste. Odd word is ball. Morning, evening, afternoon, day. Odd word is day. Tick right to good habits and wrong to bad habits. Geeta does not like going to school. Wrong. Pooja wash her hand before eating. Right. Sam does not oil and comb his hair. Wrong. Anu brush her teeth daily. Right. Raj go to sleep at 9 p.m. Right. Circle the correct word. I eat with my mouth closed. I like to be quiet when I eat. I like to stand when I drink milk. I wash my hands before eating. I must drink a lot of water. I eat breakfast in morning. After I come back from school, I have snacks. Name the following. Write two fruits name. Apple, mango. Write two vegetables name. Carrot, brinjal. Things to clean teeth. Brush, toothpaste. Write two breakfast food name. Tea and chapatis. Two names of things that you use daily. Soap and towel. Answer in one sentence. Which place we should keep clean? Home surrounding, classroom, school surrounding. What gives us energy? Food. When should we have lunch? Afternoon. What do we have at night? Dinner. Draw and color the objects. So you have to draw brush and you have to color it. You have to draw soap. You have to color it. You have to draw toothpaste. You have to color it. You have to draw mug and you have to color it. So this we have studied in a previous lecture. I hope you all have completed these notes in your EVS notebook. Now students, kindly open your EVS combined book page number 94. So I hope you have opened your EVS combined book page number 94. So from today onwards we are going to start with a do part. तो आज से हम do part चालू करने वाले हैं. First we have saw about play part. We have completed our play part. Now we are going to see do part. What is mean by do part? I have told in your first lecture. Do part means where we are going to do. जहाँ पे हम खुद करने वाले हैं उसको हम do कहते हैं. So in this we are going to do by ourselves. We are going to do various activities by ourselves. That is known as do part. So in do part, the first main topic is need based activities. Need based activities यानी क्या? तो जो हमारी ज़रूरत है, जो हमें नेसेसरी है, जो हमें इस्तेमाल के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं डेली. जैसे कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं. क्यों जाते हैं? अगर हमारी तबीयत सही नहीं है, सो वी गो टू डॉक्टर. देन वी गो टू टेलर टू स्टिच आवर क्लोथ्स. वी गो टू बार्बर टू कट आवर हेयर. तो हम बाल कटवाने के लिए सलून में जाते हैं. फिर
हमें कौन सिखाता है? टीचर। हम आपको सिखाते हैं, तो ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी नेसेसरी है, नीड्स है। सो ये सब हमारी बेसिक नीड्स है। सो नीड बेस्ड एक्टिविटीज़, इसके ऊपर ही हम ये जो डू पार्ट है इस यहाँ पे एक्टिविटी करने वाले, जो हमारी ज़रूरत है उसके ऊपर ही हम एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। सो दैट इज़ व्हाट मेन टॉपिक नेम इज़ नीड बेस्ड एक्टिविटीज़। इन दैट द फर्स्ट टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू कल्चर एंड वर्ल्ड ऑफ वर्क। इंट्रोडक्शन टू कल्चर एंड वर्ल्ड ऑफ वर्क, तो ये जो मेन टॉपिक है उसके अंदर 5 सब मेन टॉपिक्स हैं। लाइक फर्स्ट सब मेन टॉपिक इज़ रेन, देन वर्ल्ड ऑफ वर्क, then introduction to our surrounding, classroom decoration and the different style of drinking water। तो इसमें से आज हम फर्स्ट टॉपिक जो करने वाले रेन। पहले इंट्रोडक्शन टू कल्चर एंड वर्ल्ड ऑफ वर्क क्या है, वी विल सी। इंट्रोडक्शन टू कल्चर एंड वर्ल्ड ऑफ वर्क यानी इन दिस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ वर्क दैट आर देयर इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितने कितने वर्क्स है उसके बारे में, जैसे कि डॉक्टर, टेलर, नर्स, फार्मर, फायरमैन, बार्बर, टीचर, कारपेंटर, ड्राइवर, कॉबलर, ये सब जो जॉब है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद प्लेसेस, जो प्लेसेस हमारे साइड में लाइक मार्केट, बैंक, हॉस्पिटल, क्लिनिक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा, ये सब प्लेसेस के बारे में हम जानने वाले हैं। देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्लासरूम, आवर स्कूल। Then we are going to study about water, हमें पानी कहाँ से मिलता है, लाइक वेल, यस, हैंडपम्प, डैम एक्सेट्रा। तो ये सब हम इंट्रोडक्शन टू कल्चर एंड वर्ल्ड ऑफ वर्क, ये जो मेन टॉपिक है उसमें जो सब टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं। सो इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू सी ऑन रेन। आज के टॉपिक जो है वो है रेन। सो व्हाट इज रेन? रेन यानी क्या? रेन यानी क्या? रेन यानी पानी, बरसात, रेनी सीजन। अभी कौन सा सीज़न चालू है? रेनी सीजन। व्हाट कैन यू सी? आप क्या देखते हो? हर जगह पे हरियाली है और हर जगह पे पानी जमा हुआ है। ये पानी कहाँ से आया है? तो ये पानी स्काई ऊपर से, यानी बरसात होने के बाद जो पानी नीचे गिरता है वो पानी साइड में जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है। सो दिस ऑल वाटर वी गेट फ्रॉम रेन। सो यहाँ पे सब बच्चों को बरसात का मौसम अच्छा लगता है कि नहीं? यस, बहुत जनों को बरसात का मौसम अच्छा लगता है। क्यों बरसात का मौसम अच्छा लगता है? क्योंकि बरसात के मौसम में पानी के साथ हमें खेलने के लिए मिलता है। फिर जब बरसात होती है तभी गरम गरम खाना खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। और बरसात के मौसम में हर जगह पे आपको हरियाली दिखाई देती है और बहुत ही अच्छा फील होता है। हर जगह पे कूल, ठंडा महसूस होता है और हमें बहुत ही अच्छा लगता है। छोटे बच्चों को बरसात का मौसम बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि बारिश होती है और बारिश में खेलने के लिए मिलता है। बहुत सारे बच्चे ये बरसात के मौसम में बोट्स बनाते हैं और वो पानी के अंदर डाल देते हैं। तो बरसात का मौसम सबको अच्छा लगता है। तो वो ही रेन, ये जो पोयम है, ये सॉन्ग है, ये अभी हम देखने वाले हैं और वो सॉन्ग में क्या एक्सप्रेस किया है वो अभी हम देखने वाले हैं। उसके पहले आपकी ईवीएस के कंबाइंड बुक में पेज नंबर 94 पे यहाँ पे एक पिक्चर दिया है। कैन यू सी द पिक्चर? ओके, सो व्हाट कैन यू सी इन दिस पिक्चर? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक लड़का और एक लड़की खेल रहे हैं। बरसात हो रही है और वो दोनों पानी के अंदर खेल रहे हैं। बरसात का पानी जो गिर रहा है वहाँ पे वो खेल रहे हैं। साइड में एक हाउस है, घर है और वहाँ पे पूरी जगह पे हरियाली और पानी जमा हुआ दिख रहा है। सो इन योर ईवीएस कंबाइंड बुक ऑन पेज नंबर 94 देयर इज अ पिक्चर। इन दैट पिक्चर यू कैन सी द पिक्चर इज ऑफ रेनी सीजन। वो जो पिक्चर है उसमें आपको बारिश हो रही है वो दिख रहा है, यानी वो पिक्चर कौन सा है? रेनी सीजन का पिक्चर है। वो पिक्चर रेनी सीजन का है और आपको हर जगह पे हरियाली दिख रही है, ग्रीन ग्रास दिख रहे हैं और स्काई दिख रहा है और स्काई के साथ आपको बारिश की जो पानी की बूंदे हैं वो नीचे गिरते हुए आपको दिख रही है। वी कैन सी
the drops of rain that is coming down, that is falling down, then you can see the water is being stored everywhere. आपको दिख रहा होगा कि हर जगह पे पानी जमा हुआ है. Then you can see a girl and a boy playing in that water. और आपको फिर से दिख रहा होगा कि in that picture you can see the boy and girl are playing in the water. वो पिक्चर में एक लड़का और एक लड़की, वो जो बारिश हो रही है वो बारिश के पानी में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं. So the girl and the boy are dancing in the water. Also side of that there is a house, and in that house the boy is also coming out of window and he is filling the water. जो हाउस है, जो घर है, उसमें आपको दिख रहा होगा कि एक लड़का विंडो से बाहर अपने हाथों को निकल के, वो जो बरसात का सीज़न है, बरसात का मौसम है, वो एन्जॉय कर रहा है. सो ही इज़ ऑल्सो एन्जॉइंग द रेनी सीजन फ्रॉम द हाउस विंडो. सो ये पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि वो जो लड़का और लड़की है, छोटे लड़का और लड़की है, वो बरसात का मौसम उनको बहुत पसंद है और वो बरसात के मौसम में पानी के साथ खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं. So they are playing in rainy season, they are enjoying the rain. Now students, in your EVS combined book on page number 94, they have given us a song. They have told listen, repeat and sing. तो आपको वो सॉन्ग पहले लिसन, आपको सुनना है, सुनने के बाद आपको वो सॉन्ग मेरे साथ रिपीट करना है. मैं बोलूँगी, फिर आपको मेरे साथ रिपीट और सिंग करना है. सो फर्स्ट आई विल रीड, then I will explain you, then you will repeat after me. So are you ready? So remove your EVS combined book page number 94. So let's start. Pitter patter raindrops fall on the rooftop. Swish swish says the trees. Brew brew we are freeze. Splash splash goes the river, making all the stone shiver. Water flows from here to there. Water falls from the air. It's the rain, it's the rain. It washes away all our pain. We dance, we sing, we all play. Happily under the sky we stay. I will repeat one more time, just listen it carefully. Pitter patter raindrops fall on the rooftop. Swish swish says the trees. Brew brew we all freeze. Splash splash goes the river, making all the stone shiver. Water flows from here to there. Water falls from the air. It's the rain, it's the rain. It washes away all our pain. We dance, we sing, we all play. Happily under the sky we stay. So ये जो रेनी सीजन का पोयम यहाँ पे उन्होंने दिया है, यहाँ पे उन्होंने रेन, जब बरसात होती है, रेन जब गिरता है, रेनफॉल होता है, तभी हमें कैसा फील होता है और हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो यहाँ ये जो सॉन्ग है इसमें हमें बताया हुआ है. सो ना आई विल explain you two lines, just listen it. Pitter patter raindrops fall on the rooftop. Pitter patter raindrops यानी क्या, यहाँ पे बोल रहे हैं कि छोटे छोटे बूंदे, उसमें थोड़े बड़े, उसमें बड़े बूंदे भी रहते हैं, तो वो नीचे गिर रहे. रेनड्रॉप्स यानी पानी का जो ड्रॉप्स होता है, एक छोटा ड्रॉप पानी का जो रहता है वो नीचे गिरता है. बरसात कैसी होती है, ड्रॉप्स में होती है, तो वो एक एक ड्रॉप्स पीटर पीटर यानी स्लो स्लो नीचे नीचे गिर जाता है. तो वो वहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स. सो वो जो रेन ड्रॉप्स नीचे गिर रहा है, वो कहाँ पे गिर रहा है, फॉल्स ऑन द रूफ ऑफ टॉप. तो घर का जो छत है उसके ऊपर टप 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 गिर रहा है. सो जो स्मॉल स्मॉल रेन ड्रॉप्स आर देयर, दोज रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग ऑन रूफ ऑफ टॉप. हाउस के जो रूफ है उसके ऊपर गिर रहा है. सो दे आर टेलिंग पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स fall on the roof of top. उसके बाद swish swish says the trees. Brew brew we all are freeze. तो जब बारिश होती है, बरसात होता है, तभी जो पेड़ है वो ऐसे हवा के झोंके से
ऐसे झूलते हैं तो उनमें से आवाज़ आता है, तो कैसे आता है? स्विश स्विश ऐसे आवाज़ आता है। बरसात के मौसम में आपने देखा होगा कि जो पेड़ है वो ऐसे बेंड हो जाते हैं हवा के साथ, और वो जब बेंड होते हैं, हवा चलती है, तभी साउंड आता है। तो वो साउंड का एक्सप्रेस यहाँ पे वो ट्री से जो साउंड आता है वो एक्सप्रेस किया है। सो इन रेनी सीजन when the trees are moving with the hair, the sound comes like swish swish says the trees, brew brew we all are freeze। और इतना जोर से बारिश और जोर से थंडरिंग होता है तो हमें ठंड लगती है, हमें डर लगता है और हम फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज यानी जो हम बोलते हैं ना, कोल्ड की वजह से हम फ्रीज कैसे होते हैं, ऐसे स्टैचूज ऐसे वैसे हम हो जाते हैं। सो वी ऑल गेट फ्रीज। देन स्प्लैश स्प्लैश गोज द रिवर। बरसात के मौसम में पूरा हर जगह पे पानी भर जाता है, रिवर्स फुल हो जाती है, तो रिवर्स बहते हैं, पूरे ओवरफ्लो होके बहते हैं। तो वो कैसे बहते हैं? स्प्लैश स्प्लैश गोज द रिवर, वो फ्लो के आगे बढ़ जाती है। सो दे आर टेलिंग दैट स्प्लैश स्प्लैश गोज द रिवर। सो रिवर आर फुल विथ वाटर एंड दे आर रनिंग फास्ट लाइक स्प्लैश स्प्लैश। और वो जब रिवर फ्लो होते हैं उनमें से साउंड आता है, सो वाटर का जो साउंड आता है वो यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। मेकिंग ऑल द स्टोन शिवर, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि पूरे जो पत्थर है, ऑल द स्टोन्स गेट वेट, जो भी स्टोन है वो सब वेट हो जाते हैं, पानी से भीग जाते हैं। वाटर फ्लोज फ्रॉम हियर टू देयर, जो बरसात का पानी है वो हर जगह पे यहाँ से वहाँ तक पूरा भर जाता है, और वाटर यहाँ से जमा हुआ बहते बहते दूर तक जाता है। सो दे आर टेलिंग वाटर गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। वाटर फॉल्स फ्रॉम द एयर, हवा चल रही है तो हवा से वो वाटर का एक साइड हो जाता है, वाटर एक साइड से फ्लो हो जाता है। आपने देखा होगा कभी जोर से हवा चल रही है तो जो बारिश हो रही है वो ऐसी हवा के साथ जाती है, हवा के फ्लो में जाती है। सो वाटर फॉल्स विद द एयर। इट्स द रेन, तो वो बारिश है, वो बरसात है। इट्स द रेन, इट वॉश अवे ऑल आवर पेन। एंड व्हेन वी सी अ रेनी सीजन वी फील प्लेजेंट, हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है वो हैप्पीली हो जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। बारिश देखने के बाद हमारा मूड ठीक हो जाता है। वी फील हैप्पी आफ्टर वी सी अ रेनी सीजन। इट वॉश अवे ऑल आवर पेन, तो यहाँ पे बोलते हैं जो भी हमारा दुख है, जो भी हमारा पेन है, स्ट्रेस है, बरसात के मौसम में वो सब स्ट्रेस चले जाता है। वो बरसात के पानी में हमारा पेन वॉश करता है। वी डांस, वी सिंग, वी ऑल प्ले, तो बरसात के मौसम में हम क्या करते हैं? हम नाचते हैं, हम गाना गाते हैं, हम गेम्स खेलते हैं। सो इन रेनी सीजन व्हाट ऑल स्मॉल चिल्ड्रन, इवन बिग चिल्ड्रन ऑल्सो डू, they play various types of games, they dance, they sing song and they enjoy this rainy season. Happily under the sky we stay, तो ये रेनी सीजन हम एंजॉय करते हैं और हैप्पीली रहते हैं। सो दिस वॉज ऑल द डिस्क्रिप्शन ऑफ रेनी सीजन। सो नाउ स्टूडेंट्स, आई विल रिपीट दिस होल सॉन्ग वन मोर टाइम and then you will repeat after me. Pitter patter raindrops fall on the rooftop. Swish swish says the trees. Brew brew we all freeze. Splash splash goes the river, making all the stones shiver. Water flows from here to there. Water falls from the air. It's the rain. It wash away all our pain. We dance, we sing, we all play. Happily under the sky we stay. So now you will repeat after me. So start. Pitter patter raindrops, pitter patter raindrops, fall on the rooftop, fall on the rooftop. Swish swish says the trees, swish swish says the trees. Brew brew we all freeze, brew brew we all freeze. Splash splash goes the river, splash splash goes the river, make all the stone shiver, make all the stone shiver. Water flows from here to there,
water flows from here to there, water falls from the air, water falls from the air. It's the rain, it's the rain, it's the rain, it's the rain. It washed away all our pain, it washed away all our pain. We dance, we sing, we all play, we dance, we sing, we all play. Happily under the sky we stray, happily under the sky we stray. So students, you will read this poem at your home. So this is your homework. So आपका homework क्या है? So the homework is you will read this poem 2 times at your home. तो आपका आज का homework है, आप जो ये पोएम या ये सॉन्ग जो अभी हमने रीड किया है, ये सॉन्ग आप अपने घर पे 2 बार रीड करने वाले हो. सो दिस इज योर होमवर्क. सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understood today's lecture. So in today's lecture we have saw about do part where we have saw need based activities, then we have saw introduction to culture and world of work, then we have saw the picture which was given in a book where we can see the children are playing in the rain, they are enjoying the rainy season, whereas we can see there is a rain falling down and everywhere the water is been stored and children are playing in that water. So children loves to dance, sing song in that rainy season. Then we have sing the song which was given in a combined book on page number 94. So students, thank you.